السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج کے لیکچر میں ہم پلانٹ ٹشو کو ون بائی ون پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ پریویس لیکچر میں ہم نے پلانٹ ٹشو کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں پڑھ لیا کہ پلانٹ ٹشو کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، کو ہم سمپل ٹشو کہتے ہیں، دوسرے کو ہم کمپاؤنڈ ٹشو کہتے ہیں۔ پھر سمپل ٹشو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سمپل ٹشو کے پھر مزید دو ٹائپس ہیں، ایک کو ہم میرسٹمیرک ٹشو کہتے ہیں جبکہ دوسرے کو ہم پرماننٹ ٹشو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم میرسٹمیرک ٹشو کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ان میں کیا ہوتا ہے۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ میرسٹمیرک ٹشو the tissue whose cell have the ability to divide and redivide۔ پہلے نمبر پر بات تو یہ ہے کہ ایسے قسم کی ٹشو ہے جو کہ ڈویژن اور بار بار ڈویژن کی ایبلٹی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹشو ہمارے پاس پلانٹ میں ان پوزیشن پر ہوگی جہاں پر گروتھ کی ضرورت ہوتا ہے اور سیل کی ریپڈ ڈویژن اینڈ ری ڈویژن کی ضرورت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کے لوکیشن کے بارے میں پڑھ لی۔ سو دیز ٹشو آر پریزنٹ ایٹ دا گروئنگ پوائنٹس آف پلانٹ باڈی۔ جہاں پر پلانٹ کے باڈی میں گروتھ ہوتا جا رہا ہے تو وہاں پر یہ ٹشو موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اب گروتھ کہاں پر ہوتا ہے؟ تو گروتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پلانٹ کی جو ٹپ والا پارٹ ہے نا وہاں پر گروتھ ہوتا ہے۔ یہ پلانٹ ہو گیا، اس کا جو ٹپ والا پارٹ ہے وہاں پر گروتھ ہوتا جا رہا ہے، مطلب پلانٹ کی جو ایلانگیشن ہوتا ہے، پلانٹ کے اوپر ایکسٹینشن ہوتا ہے، ساتھ ساتھ جو برانچز کے ایکسٹینشن ہوتے ہیں نا وہاں پر یہ ہوتا ہے۔ مطلب فار ایگزامپل یہ میں ڈرا کرو کہ اس سے ایک برانچ بھی اس طرح برانچ کے شکل میں، تو یہ ٹشو وہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹشو وہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ پلانٹ کے جو مین سٹیم ہوتا ہے اس کے جو اوپر ایلانگیشن ہوتا ہے وہاں پر بھی موجود ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک دوسرے ٹائپ کی گروتھ پہ ہوتا ہے جو کہ پلانٹ کے جو تنا ہوتا ہے، جو سٹیم ہوتا ہے اس کی تھکنیس پہ ہوتا ہے، کیونکہ پلانٹ اپنی ایلانگیشن کے ساتھ ساتھ اپنی تھکنیس بھی کرتا رہتا ہے، پوری سال یہ اپنی تھکنیس بھی کرتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ ٹشو ہمارے پاس جو تھنی میں جو لیٹرل پارٹس ہوتے ہیں نا یہاں پر بھی یہ موجود ہوتے ہیں اس شکل میں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس بیس پر کہ یہ ہمارے پاس ٹپ میں بھی موجود ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس لیٹرل سائڈ میں بھی موجود ہوتے ہیں، اس بیس پر میرسٹمیرک ٹشو کی دو ٹائپس ہیں۔ Apical meristem, the kind of meristematic tissue which is present at the apex of root and shoot۔ apex ٹپ کو کہتے ہیں۔ تو اپیکل میرسٹم یہ ایسے میرسٹمیرک ٹشو ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس شوٹ کے ٹپ پر ہوتا ہے، برانچز کے ٹپ پر ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ روٹس کے ٹپ پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ روٹس ہو گیا تو روٹ کی ایسا ٹپ پوزیشن پر بھی یہ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور روٹ کی ایکسٹینشن بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹپ پر جو موجود ہے نا ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں ایپیکل میرسٹم، ٹھیک ہے، ان کو ہم کہتے ہیں ایپیکل میرسٹم۔ اچھا، اب ان کا کام کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایپیکل میرسٹم ہے، ایپیکل میرسٹم۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ So there does primary growth and plants by the elongation of its shoot and root۔ اچھا، ان کا مین کام ہے پرائمری گروتھ۔ اب پرائمری گروتھ کیا ہے؟ پرائمری گروتھ ہمارے پاس پلانٹ کی جو شوٹ ہوتا ہے، جو روٹ ہوتے ہیں، جو برانچز ہوتے ہیں ان میں جو ایکسٹینشن ہوتے ہیں، مطلب برانچز کی اور شوٹ کی جو ایلانگیشن ہوتے ہیں اس کی سائز کا جو لمبا ہونا ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری گروتھ۔ سو واٹ از پرائمری گروتھ؟ the increase in length of the plant organs is called primary growth۔ Again listen, what is primary growth? The increase in length of plant organs like shoot, roots and branches is called primary growth۔ And who does the primary growth? primary growth کون کرتے ہیں؟ تو primary growth ہمارے پاس apical meristem tissue کرتے ہیں۔ So what is the function of apical meristem tissue? These are the tissues are at the apex of shoot, branches and roots۔ What is its function؟ ان کا کام کیا ہے؟ So there does primary growth، یہ ہمارے پاس primary growth کرتے ہیں۔ And what is primary growth؟ The increase in length of root and shoot۔
रूट्स और शूट की लेंथ में इजाफे को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, और ये कौन करते हैं, ये हमारे पास हो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू करते हैं, ठीक है। और एपिकल मेरिस्टेम क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक टाइप है। अच्छा, दूसरा टाइप की टिश्यू है उसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। किसका टाइप है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल का मतलब है लेटरल साइड्स, जो शूट का जो लेटरल साइड होता है ना, ये वाला, इन पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या है, ये है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब इनका काम क्या है, इनका काम है दे डज सेकेंडरी ग्रोथ एंड प्लांट्स बाय इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ वुडी स्टेम। इनका काम है सेकेंडरी ग्रोथ करना। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट की जो शूट होता है, जो रूट्स होते हैं, क्योंकि ये रूट्स में भी लेटरल साइड पर इधर होते हैं, ठीक है, इधर लेटरल साइड पर होते हैं। प्लांट की जो शूट होता है, जो रूट्स होते हैं, उनकी लेटरल साइड में जो थिकनेस होता है उनको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। क्योंकि जब प्लांट का ये टिप है ना, ये एक बार ये इस तरह ग्रो करें, मतलब इस तरह ये एक्सटेंड हो जाए, इस तरह एक्सटेंड हो गया ना, अब नेक्स्ट टाइम इसने एक और, इसको हम कहते हैं जब ये एक्सटेंड हो गया इसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, एक्सटेंशन को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अब जब ये एक्सटेंड हो गया तो नेक्स्ट टाइम इसने थिकनेस भी करना है, कि इस शक्ल को हमने इस तरह बनाना है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब प्राइमरी ग्रोथ किसका काम हो गया, ये मेन जो एक्सटेंशन है जो सुर्ख कलर का है, ये काम था एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। और ये बाद वाला जो थिकनेस का फिनोमेना है, जो थिकनेस का काम है, ये किसका काम है, ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। सेकंड ग्रोथ का काम किसका है, लेटरल मेरिस्टेम। अब इसके बाद हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल की कैरेक्टरिस्टिक है उनको पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी सेल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेल बनी हुई है तो की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दी सेल साइटोप्लाज्म। पहली बात ये है कि मेरिस्टेम जो सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म डेंस होते हैं। डेंस का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल होते हैं, उनके जो साइटोप्लाज्म प्लाज्मा की क्वांटिटी है, साथ ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस तरह बहुत ज़्यादा सब ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको डेंस कहते हैं। और इसके डेंस होने का वजह ये है कि ये क्यों डेंस होते हैं, इस वजह ये है कि इन सेल्स का काम होता है मुसलसल डिवीजन के लिए तो हम बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन होते हैं, मतलब हमारे पास सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होनी चाहिए, साथ साथ मटेरियल जो अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इस तरह जो प्लाज्मा पोर्शन है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। लिहाजा मुसलसल डिवीजन के लिए ये चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए इन सेल्स में साइटोप्लाज्म डेंस होते हैं, ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट है दे हैव लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस, कि इन सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है लेकिन वो न्यूक्लियस लार्ज होता है और वो सेंट्रल पोजीशन पर होता है। आप लोग देख सकते हो जो ये ग्रीन पोर्शन वाला है ना, ये क्या है, ये न्यूक्लियस, सॉरी ये रेड पोर्शन वाला जो है ना, ये दरमियान में, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और ये क्यों लार्ज सेंट्रल है, क्योंकि इस सेल का काम होता है मुसलसल डिवीजन, और डिवीजन के लिए हमारे पास हो क्रोमोसोम का अपीयर और उनका विजिबल होना चाहिए, कि क्रोमोसोम के मतलब जो साइज होते हैं वो भी बड़ा होगा ना, और इस तरह बाकी सेल के काम भी ज्यादा होते हैं, इसलिए आर्डर सेंटर न्यूक्लियस चूंकि एक आर्डर सेंटर की तौर पर काम करता है, लिहाजा जब सेल के काम ज्यादा हो ना तो उनके लिए आर्डर सेंटर भी ज्यादा होते हैं। जिस तरह हमारे जो स्केलेटल मसल होते हैं ना, तो सेल में कई कई न्यूक्लियाई होते हैं, वो क्योंकि स्केलेटल काम चूंकि इन सेल ज्यादा होता है, मतलब मुसलसल रिपीटेडली डिवीजन होता है, इसलिए आर्डर सेंटर को भी बड़ा होना चाहिए, सही। न्यूक्लियस का लार्ज सेंटर होने का रीजन ये है कि चूंकि ये सेल कंप्लीटली डिवाइड होते जा रही है ना, इसलिए सेंट्रल लार्ज न्यूक्लियस होना चाहिए।
तीसरा पॉइंट है दे हैव अ सिंगल स्मॉल वैक्यूल और नो वैक्यूल। वैक्यूल हमारे पास एक अर्गेनिल होता है सेल में, प्लांट सेल्स में, और आमतौर पर प्लांट सेल्स में हमारे पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। अगर मैं एक आम प्लांट सेल के डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करूं कि हमारे पास एक आम प्लांट सेल किस तरह होता है, तो इस शक्ल का होता है कि ये होगी इसका सेल वॉल, इसका सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद हमारे पास जो वैक्यूल होता है ना, तो वो एक बड़े शक्ल का इस तरह होता है, ठीक है, एक बड़ी शक्ल का लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। जबकि न्यूक्लियस हमारे पास हो इस तरह किसी एक साइड पर छोटा सा होता है। इन सेल्स में असल में क्या होता है कि इन सेल में हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको स्टोरेज करना इस वैक्यूल का काम होता है। चूंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में वेस्ट ज़्यादा नहीं होती और नहीं ज़्यादा स्टोरेज करने की ज़रूरत है, बल्कि तो रिपीटेडली डिवाइड होती जा रही है, इसलिए इनमें वैक्यूल का ज़रूरत इतना नहीं हो। लिहाजा एक दो स्मॉल वैक्यूल होगी कहीं, ये जो छोटे मैंने शुरू की है ना, ये वाली, ये छोटा सा जो दायरा है ना, ये क्या है, ये वैक्यूल है। तो एक दो छोटे से वैक्यूल होंगे या वैक्यूल नहीं भी हो सकती, और नो वैक्यूल। सो वैक्यूल छोटे होने या न होने का वजह ये है कि इन सेल्स में चूंकि वेस्ट मटेरियल स्टोर नहीं होती बल्कि ये रिपीटेडली डिवाइड होते जा रही है, लिहाजा इसमें वैक्यूल की जरूरत नहीं। चौथा पॉइंट कहते हैं ऑल सेल्स आर अलाइक, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जितनी भी सेल्स है ना वो सभी एक तरह की होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सब सेल एक तरह के होते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट कहता है दीज सेल हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटरसेल्युलर स्पेस जो है ना, ये सेल्स के दरमियान में जो जगह होता है उसको हम कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। मतलब ये एक सेल हो गया, ये सेल जब खत्म होता है तो दूसरे सेल शुरू होता है। अब इस सेल और इस सेल के दरमियान जो जगह होता है उनको हम इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। अब कहते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं उनमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती, बल्कि तमाम सेल जो है ना वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट कहता है दीज सेल हैव 10 वॉल्स, कि इन सेल में हमारे पास जो वॉल होते हैं, जो सेल वॉल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो 10 होते हैं। और 10 होने का वजह ये है क्योंकि ये सेल्स बार बार डिवाइड होते हैं और एक सेल दो सेल्स में स्प्लिट होते हैं, लिहाजा ड्यू टू कंटिन्यूस डिवीजन दे डज नॉट रिक्वायर 10 वॉल्स, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल का डायग्राम है और ये एक आम सेल का डायग्राम है। तो इसमें कितना फर्क है, तो ये क्या है, ये आम सेल के है, सही, जनरल सेल के है, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल का है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक, ठीक। तो ये थी हमारे पास प्लांट टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में तफसील। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों से एक छोटी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। वस्सलाम।